So this is my first video on this particular channel. तो ये पहले मेरा vlogging channel था, but as in कहीं अगर मैं travel जाती थी या कहीं जाती थी, then I used to post in this particular Instagram का page. But yes, often of late I realized one thing, that there are a lot of people जो मेरे subscribers हैं, they need a lot of help when it comes to mental peace. So I want to address, because I was once a teacher. Okay, let me introduce myself. Initially I did my MSc, and then I was working in corporate in Hyderabad, and then after 2-3 years I pursued B.Ed. So hence I became a teacher with a TGT level, means 10th, 12th and the teenagers mostly. So I have still many students who are in touch with me, and they constantly talk about healing. Now healing, a lot of people have different definition. Now I am 35 now. I have to tell my age, because I wanted to actually tell you that I went through a lot of phases, whether it comes to teenage, whether it comes to college life, then it comes to professional life. And in professional life, when you are not happy, you keep on switching your career. I went to that phase where after that, definitely heartbreaks. Definitely now I'm married. I am blessed with a baby girl. So I think I have covered almost 35 years of my life. And I think I am in a position, like 10% in a position to, help people who actually go through a lot of mental chaos. Now there is one of the student, not one, recently one of the students, she was like, you do a lot of live, ma'am, why don't you come and talk about a lot of disturbances that happen in our life. Now I completely get that, whether it comes from your parents, relatives. She is doing her 12th, and she, I think, recently got moved to first year. She took science, and that is what she was always aiming to take, science, which is again very good. But again, having said that, she is going through a lot of trouble when it comes to her family, her father, and also the love life. So there is, at this stage when you are in college life and when you are moving to a different level, maybe second year, or nowadays I think even 11, 12 students face this problem. I would say I'm not here to heal you guys, but I wanted to say only one thing. And these are the sessions that I will take always twice or thrice in a week. You will get these videos about self-motivation, and hence I changed my entire page name to self-motivation and self-love. Now I think this generation, the Gen Z, which I call, are too much, they don't understand the concept of self-motivation, and they do not understand the concept of self-love. Now these two concepts are something that I have stick in my entire teenage, my college life, my professional life, and probably till now. Now सेल्फ लव एंड सेल्फ मोटिवेशन, ये दोनों ऐसी चीज है जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाएगा. एंड इफ यू थिंक आपको कोई आएगा मोटिवेट करने, दैट्स नॉट हैपनिंग. येस, योर पेरेंट्स आर देयर, येस, योर गुड फ्रेंड्स आर देयर, बट अगेन, अगर आप चाहते हो कि पूरी दुनिया आपको आए और बोले कि स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, or don't expect, I will motivate you, I'm there for you, I will be there for you entire life, ऐसी बहुत सारे बातें होती है. बट अगेन, हैविंग सेड दैट, सेल्फ मोटिवेशन कैसे लाना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा कुछ नहीं होगा दैट द फ्रेंड्स और योर बिलवेड विल बी विद यू फॉर एवर. If you are lucky, yes, they can, but ऐसा कभी नहीं होता है that they will be with you forever. You have to motivate yourself. कैसे करोगे? For example, कोई भी चीज़ step by step, one step at a time. I believe in the concept one at a time. You cannot be आज मैंने decide कर लिया that I will be self motivated, और कल से मैं self motivate हो गई.
ये जो सफ़र है सेल्फ मोटिवेट होने का, इट इज़ अ जर्नी. इट डजंट हैपन कि आज मैंने बोला और कल मैं हो गई. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, छोटे छोटे स्टेप्स, वन स्टेप एट अ टाइम. आज मेरा पूरा दिन हुआ, आई गॉट अप वेरी लेट इन द मॉर्निंग. मैं दौड़ी ऑफिस के लिए, वहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया, अपना काम किया, फिर लंच के लिए भागी एंड मैं भागते गई. मैं पूरे दिन भागती ही गई. इफ़ योर शेड्यूल इज लाइक दैट, स्टॉप इट. आई एम अ पर्सन जो अपने 10th 12th में आज तक कभी भी 8 बजे से पहले नहीं उठी है. ट्रस्ट मी, आई एम अ पर्सन. It's been like about a month or two. I started getting up, setting my alarm at 5 o'clock. 5 o'clock मेरा अलार्म बजता है. I don't get up. I know. 5:10, 5:20 तक I am outside my bed. Now, how do I motivate? Now, I have a disturbance as well when I'm talking to you. She just came. My kid is like little bit having fever, but that does not stop me from making the video. This is also a motivation. So okay, I was where 5:20 तक I'm outside the bed. Now after getting out of the bed where the weather is so good, अब मुझे शावर लेना है, which is impossible. तो क्या करें? करना तो है ना. Get outside, get into your balcony, feel the fresh air. I trust me. ये जो बहुत सारी आजकल बातें होती है, healing, you have things at your home to heal yourself. I go to the balcony, I take the fresh air, और वो हवा इतनी मीठी होती है ना कि even if you are in a very bad pain, it can be your breakup, it can be your family matter, it can be your husband's fighting with your husband, it can be your kid is not doing good, it can be your professional life not running as expected. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सबको है. इफ़ यू आर थिंकिंग कि दैट पर्सन इज़ हैप्पी क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, बहुत घूम रहा है, बहुत वीकेंड्स में एंजॉय कर रहा है, द पर्सन इज़ हैप्पी. नो. सोशल मीडिया जो है, इट इज़ अ काइंड ऑफ टॉक्सिक थिंग विच टेल्स यू कि आपको क्या करना है. आप बताएंगे कि आपको क्या करना है. सोशल मीडिया आपको नहीं बताएगा आपको क्या करना है. डोंट इवन गेट इन टू दोज थिंग्स जहाँ पे व्हेन यू आर कंपेयरिंग योर लाइफ with somebody in the social media who is very happy. It can be your friend, it can be your relative, it can be your ex-boyfriend, it can be your कोई भी हो सकता है. Don't compare them. आपको नहीं पता उनके लाइफ में क्या चल रहा है, आपको वही पता है जो वो दिखाना चाहते हैं. दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल थिंग जो आजकल के जेनजी नहीं समझते ये चीज़ को. डू नॉट स्टार्ट योर डे विद दिस स्क्रोलिंग ऑफ योर फोन कि भैया कौन कहाँ पे घूम रहा है, किसकी लाइफ कितनी सेट है. आपको क्या करना है? आपको करना क्या है? आपकी लाइफ है, आपका अपना स्पीड है, आपका अपना दिमाग है, आपका अपना करियर है, आपका अपना फोकस है, आपका अपना मोटिवेशन है, आपका अपना सेल्फ लव है. यू कैन नॉट बी मी, आई कैन नॉट बी यू. हर इंसान इस दुनिया पे बहुत अलग है. हम सब सेम नहीं हैं, हमारी क्वालिटीज़ सेम नहीं है, हमारा विल पावर सेम नहीं है. सो सबसे पहले जो ये उठकर हम लोग फ़ोन की स्क्रोलिंग करते हैं ना, स्टॉप डूइंग दैट. गेट अप फ्रॉम योर बेड, लेफ्ट लेग डाउन, chant your favorite mantra. For me, my Krishna mantra is something which I love. Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranatah Kleshanashaya Govindaya Namo Nama. ये कर सकते हैं. फिर आप मैं कृष्ण जी और गणेश जी की तो बहुत बड़ी भक्त हूँ. आई थिंक जब से मैं छोटी थी तब से. सबसे पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. कोई भी मंत्र, चाहे वो आप दुर्गा माँ का हो, अगर आप कोई भी भगवान के भक्त हैं, उनका मंत्र या फिर आप नॉर्मल गायत्री मंत्र से शुरू करिए. कुछ भी शुरू करिए. फर्स्ट हियर योर इनर सोल. आप जब भगवान से कनेक्शन करते हो, इट कैन बी इवनिंग, इट कैन बी अर्ली मॉर्निंग, तो बहुत तेज कनेक्शन होता है. अपने आप को फील करिए. डोंट थिंक कि घर के सारे लोग लेटे हुए. मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था, मैं आपको बताती हूँ, कि सब सोए हुए हैं, हम गधों की तरह जाग रहे हैं. हम है, वो है.
माई हस्बैंड डज नाइट शिफ्ट, तो मेरे लगता है सब सोए, मैं क्या जग के क्या नाचना है क्या मैंने? हाँ, क्योंकि दिन आपका है, वक्त आपका है, शरीर आपका है, और आपको जो अचीव करना है वो भी आपका गोल है, किसी और का गोल नहीं है। अब अभी तो रिसेंटली लाइक आई हैव टू गेट रेडी माई किड, उसको भेजना है, तो मैं 8 बजे से उसके काम पे लग जाती, बट उसके पहले वाला टाइम मेरा है। आराम से 5:30 बजे उठो, बाहर थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट आराम से आधा घंटा मैं वॉक करती हूँ टिल 6:10। आई फ्रेशन अप बाय 6:30, 7 बजे तक मैं फ्रेश हूँ। 7 से 8 o'clock कोई एक अच्छा बुक ले लिया, पढ़ लिया, योगा कर लिया, तो 8 बजे मेरा दिन शुरू होता है व्हेन आई नीड टू गेट रेडी माई किड। 8 से 8:30 बजे मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, 8:30 to 9, एंड आई जस्ट मतलब उसको पूरा रेडी करके आई गेट मतलब 9:30 तक आई विल बी फ्री। नाउ आई लॉग इन 9:30, ऑफिस चले जाती हूँ, अगर घर पे काम करती हूँ देन 9:30 से 10 o'clock आई हैव माई ओन टाइम। सबसे पहले जेंजी जो भी सुन रहे होंगे मुझे, मैं एक ही चीज़ को बोलूँगी, अपने आप पे ध्यान देना सबसे पहले शुरू करिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे सेल्फ लव की, सेल्फ मोटिवेशन की। इतना तक तो शुरू करिए, एंड डेफिनेटली दीज थिंग्स विल लीड यू टू अ गुड प्लेस। आप धीरे धीरे जब ये चीज़ें करने लगेंगे ना, आपको खुद से प्यार हो जाएगा। और मुझे नहीं पता आप में से कौन ये बिलीव करते हैं, अपना कह के सिर्फ 2 ही इंसान होते हैं, माता पिता और भगवान। ये 2 इंसान, ये 2 या जो भी है, मम्मी पापा भगवान, 3 बोलो 4 बोलो व्हाटएवर इट इज, यही 2 चीज़ें आपकी हैं, बाकी कोई भी चीज़ आपका नहीं है। ये चीज़ जितना जल्दी समझ जाएंगे, लाइफ जीने का मज़ा आ जाएगा। राधे राधे। फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट सेशन पे, टिल देन स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज आई विल कीप सेल्फ मोटिवेटिंग यू, एंड लेट्स बिगिन द जर्नी।